Wheatstone bridge, arrangement of 4 resistances in the form of a quadrilateral, such that across one of the quadrilateral you put a battery, a source. Across another diagram you put a galvanometer. Okay, there are two conditions of this Wheatstone bridge. One condition, unbalanced condition, when there is a current through galvanometer. This current may be from B to D or maybe D to B. Whatever be the current, it is called unbalanced state of Wheatstone bridge. When you have some current, and if this galvanometer shows a zero reading, means there is no current through galvanometer, you say this Wheatstone bridge is balanced. There is no current through galvanometer. In spite the circuit is complete, all the connections are connected firmly, still there is no current through galvanometer, then you say the Wheatstone bridge is in its balanced state, right? So what happens when it is balanced state? Actually हम इस पूरे Wheatstone bridge को बैलेंस्ड स्टेट में ही यूज करते हैं, अनबैलेंस्ड का हमारे लिए कोई यूज है भी नहीं. Now consider current I from positive terminal of battery. At A, this current has two options, two paths to follow. It may go from A to B, it may go from A to B. दोनों तरफ जानी है. Now current from A to B is I1, right? So what is the current from A to D? At junction, at this junction, the net current towards the junction is the total current, net current away from the junction. I1 is away from the junction, so there must be another current I minus I1 away from the junction. दोनों को आप ऐड कर दीजिए, you have I away from the junction, I towards the junction. Correct. At point B, this I1 has two paths it can follow, one from B to C, another from B to D. It will follow two paths. There is a current IG from B to D. IG, it is the current in galvanometer. Galvanometer current IG. Then what is the current left from B to C? Current I1 minus IG is left from B to C. This is I1 minus IG. Okay, now at junction D, there are two currents approaching the junction, IG and I minus I1. I minus I1. So what is the total current away from the junction? It must be the sum of two currents approaching the junction, which is I minus I1 plus IG. The current from D to C. The current from D to C is what is this current? I minus I1 plus IG. This is the current from D to C. At junction C, there are two currents, I1 minus IG and I minus I1 plus IG. Now the net sum, the sum of these two current is I. करके देख लीजिए आप. I minus I1 plus IG plus I1 minus IG plus IG minus IG plus I1 minus I1. How much current is there from C to the cell? It is I. ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट क्लियर हुआ सबको? किसी को कोई कंफ्यूजन? रेज योर हैंड्स.
प्रियांशु की प्रॉब्लम है कि ये I माइनस आई वन कैसे रख लिया। ठीक है, चलो हम ये कह रहे हैं कि ये I माइनस आई वन नहीं है, ये ए टू बी है आई वन, और ए से डी तक है कितनी, मैं इसको लिख लेता हूँ आई टू। क्या लिख लेता हूँ? आई टू। करेक्ट। तो अब बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से इसे समझना, अलग से मैं कर दूं कहीं पर। आई वन इज टूवर्ड्स जंक्शन, और आई वन एंड आई टू आर अवे फ्रॉम जंक्शन। तो कैसे बनेगी बात, ये देखो, आई वन इज टूवर्ड्स जंक्शन, नो सॉरी, आई इज टूवर्ड्स जंक्शन एंड आई वन आई टू आर अवे फ्रॉम द जंक्शन। तो नेट करंट, टोटल करंट टूवर्ड जंक्शन इज इक्वल टू द टोटल करंट अवे फ्रॉम द जंक्शन। अब यहाँ आप जरा ध्यान से देखिएगा, अगर मैं आई टू फाइंड करूँ तो वो कितना होगा, आई माइनस आई वन होगा। तो आई टू इज इक्वल टू आई माइनस आई वन। मैंने आई टू ना लिखकर आई माइनस आई वन लिख लिया, आई टू को सब्स्टिट्यूट कर लिया सीधा सीधा, क्योंकि आई टू में लिखूंगा तो बहुत लंबी लंबी इक्वेशंस बन जाएंगी, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी इक्वेशंस। क्यों? क्योंकि इसको मैं अगर आई टू लिखूंगा तो फिर मुझे आगे चल करके यहाँ कहीं आई थ्री वगैरह लेना पड़ेगा, और वो बहुत सारी करंट्स हो जाएंगी। तो इसलिए मैंने ये आई टू यहाँ नहीं लिखा, आई टू नहीं लिखा, सीधे सीधे आई टू की वैल्यू लिख ली कितनी, आई माइनस आई वन, ताकि हमारे पास कम कम पैराम वो रहे, अननोन क्वांटिटीज कम रहे। एक तो क्वांटिटी हो गई आई, दूसरी हो गई आई वन, फिर तीसरी हो गई आई जी, कम से कम तीन तो ये लेनी पड़ेंगी। बाकी सब इन्हीं की टर्म्स में निकाल ली, बाकी सारी हर आर्म में हमने इन्हीं की टर्म्स में निकाल ली करंट। हाँ प्रियांशु, क्लियर हुई बात इतनी या नहीं? यस सर। यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो एक जंक्शन पर टोटल करंट टूवर्ड्स द जंक्शन है आई वन, तो टोटल करंट अवे फ्रॉम द जंक्शन, इन दोनों को आप जोड़ के देखो, आई जी प्लस आई वन माइनस आई जी, तो कुल मिलाकर के कितनी हो गई, आई जी आई वन। टूवर्ड्स द जंक्शन इज इक्वल टू अवे फ्रॉम द जंक्शन, हर जगह हमने यही काम करना है। यहाँ तक की बात सबको क्लियर है? अब हम किरचॉफ, ये देखिए, पहले तो हमने जो करंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया है इट इज अकॉर्डिंग टू किरचॉफ जंक्शन लॉ। जंक्शन लॉ से किया, अब किरचॉफ लूप लॉ हम लगाते हैं। लूप लॉ हम लगा लेते हैं, किरचॉफ लूप लॉ। मैं यहाँ दो लूप ले रहा हूँ, ए बी सी, ए बी डी ए, लूप ए बी डी ए बी डी ए। देखिए ध्यान से, आपने ए से बी तक चले कोई ईएमएफ नहीं, बी से डी तक चले कोई ईएमएफ नहीं, डी से ए तक चले कोई ईएमएफ नहीं, तो ईएमएफ तो इस पूरे के पूरे लूप में जीरो है। ठीक है, ए से बी के बीच में आपको रेजिस्टेंस पड़ता है पी, और करंट कितनी है, आई वन। तो लिखा जाएगा पी इंटू प्लस आई वन, क्योंकि आप करंट की ही डायरेक्शन में चल रहे हो, तो प्लस आई वन। फिर करंट है आई जी, और इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, हर इंस्ट्रूमेंट का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, गैल्वेनोमीटर का अपना रेजिस्टेंस है, मैंने इसे लिख लिया कैपिटल जी। तो यहाँ क्या बनेगा प्रोडक्ट, प्लस आई जी इंटू जी। और फिर इस कंडीशन में यहाँ जब हम बी से ए पर चल रहे हैं, तब हमें करंट के अगेंस्ट चलना है। तो वॉट एवर बी द करंट इट इज टू बी टेकन निगेटिव, निगेटिव ऑफ आई माइनस आई वन इंटू आर, निगेटिव ऑफ आई माइनस आई वन, इस पूरे का निगेटिव इंटू आर। तो हम लूप कंसीडर कर रहे हैं। एक मिनट में एक काम करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि मैं साइड बाय साइड यही काम कर लूँ। यहाँ यहाँ कंसीडर लूप ए बी डी ए, ए बी डी ए। ओके, ये आपने लूप कंसीडर किया ए बी डी ए। अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ हम ईएमएफ तो इसमें है जीरो, जरूरी नहीं किसी लिए लूप में ईएमएफ आ ही रहा हो, एक ईएमएफ भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकता। करंट पॉजिटिव, क्योंकि हम करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो प्लस आई वन इंटू पी। ओके, करंट की ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, देन प्लस आई जी इंटू जी। फिर हमें लेनी नेगेटिव, नेगेटिव ऑफ दिस होल करंट, कौन सी है ये,
करंट है I माइनस आई वन, तो पूरे I माइनस आई वन का मैं निगेटिव लूंगा, निगेटिव ऑफ I माइनस आई वन इंटू इंटू आर। ये आपकी पूरी इक्वेशन बन गई। लूप के कौन से लूप के लिए बन गई? ए बी डी ए, करेक्ट। ए बी डी ए लूप के लिए ये पूरी कंडीशन आपकी बन गई है। मैं इसे सॉल्व नहीं कर रहा, इसे ही छोड़ देता हूँ। दिस इज इक्वेशन नंबर वन। इक्वेशन नंबर वन आ गई है। अब हम लूप कंसीडर करते हैं। कंसीडर लूप, कौन सा वाला लूप? बी सी डी बी, बी सी डी बी, बी सी डी बी। ओके, ध्यान से देखिएगा। बी से सी तक चले कोई ईएमएफ नहीं, सी से डी पर चले कोई ईएमएफ नहीं, डी से बी पर चले नो ईएमएफ, तो ईएमएफ तो जीरो है। बी से सी चले, यू आर ट्रेसिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, जिधर करंट चल रही है उधर ही आप चल रहे हो, तो वट एवर बी द करंट इट इज टू बी टेकिंग पॉजिटिव, प्लस आई वन माइनस आई जी इंटू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना है? क्यू, क्यू इज द रेजिस्टेंस। नेक्स्ट, यू आर ट्रेसिंग अगेंस्ट द करंट, आप करंट जिधर करंट चल रही आपको उसके उल्टा चलना पड़ रहा है, तो वॉट एवर बी द करंट इट इज टू बी टेकन नेगेटिव, नेगेटिव ऑफ दिस होल करंट आई माइनस आई वन प्लस आई जी, आई माइनस आई वन प्लस आई जी, and multiplied by resistance. What is the resistance here? Here the resistance is, here the resistance is S. Okay. फिर इसके बाद आ जाते हैं हम, करंट IG है लेकिन करंट के अगेंस्ट चलना पड़ रहा है, तो सर वीडियो दिखाई नहीं दे रही। तो करंट है आपकी दिस होल करंट, नहीं सॉरी सॉरी, करंट है IG, देन माइनस IG, और मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस, कितना रेजिस्टेंस है? G रेजिस्टेंस है। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब यहीं से थोड़ा सा हम इसे बैलेंस कंडीशन ले लेते हैं। बैलेंस्ड कंडीशन में क्या है कि आई जी जीरो है। बैलेंस्ड, जब व्हीट स्टोन ब्रिज आपका बैलेंस्ड है तो आई जी जीरो है। फॉर बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज के लिए आई जी की वैल्यू है जीरो, देर इज नो करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर। तो अब इस पूरी इक्वेशन में मैं आई जी को जीरो रख दूं, देखना जरा, आई जी को जीरो रख दूं, तो एक तो यहाँ से ये पूरा का पूरा गायब हो जाएगा, आई जी इंटू जी गायब हो जाएगा। जब आई जी जीरो है तो आई जी इंटू जी भी जीरो बन जाएगा। तब आपकी इक्वेशन नंबर वन बनेगी आई वन पी माइनस आई वन इंटू आर। लिख दूं ना डायरेक्ट इक्वेशन ये, आई वन पी माइनस आई वन आर। मैं इससे ज्यादा सॉल्व भी नहीं करूंगा इसको। तो फर्स्ट इक्वेशन आपकी क्या बनने वाली है? फर्स्ट इक्वेशन आपकी बनने वाली है आई वन पी माइनस आई वन इंटू आर। और यहीं से अगर आप साइड चेंज कर लें तो क्या बनेगा आपके लिए? आई वन पी इज इक्वल टू आई माइनस आई वन इंटू आर। मैं चलो इसको इक्वेशन नंबर 3 कह देता हूँ, करेक्ट। अब ये वाली इक्वेशन आ जाओ, सेकेंड वाली इक्वेशन, आई जी जीरो है तो माइनस आई जी यहाँ से खत्म हो गया, बचा क्या आपके पास? प्लस आई वन इंटू क्यू। क्या बचा? आई वन इंटू क्यू। नेक्स्ट, आई जी यहाँ से खत्म हो गया तो बचा क्या? आई माइनस आई वन, और निगेटिव, निगेटिव ऑफ आई माइनस आई वन इंटू एस। आई जी यहाँ से खत्म हो गई, वॉट एवर इट इज, निगेटिव या पॉजिटिव जीरो है तो ये पूरा फैक्टर खत्म हो गया। अब बचा आपके पास क्या? प्लस क्यू माइनस आई वन एस। क्या बचा आपका? आई वन क्यू माइनस आई वन इंटू एस।
और मैंने इसी से साइड चेंज करी, तो साइड चेंज करते ही क्या बन जाएगा, साइड चेंज करते ही बन जाएगा I1Q इक्वल्स I माइनस I1 इंटू आर। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 3 इक्वेशन 4 को आप डिवाइड सर कर, एस, ठीक है मैं गलत कर गया, एस, दिस इज एस। ओके, अब क्या करेंगे देखो, इक्वेशन 3 इक्वेशन 4 को आप डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड जब करेंगे तो I1P बाई I1Q, I1 कैंसिल, I माइनस I1R अपॉन I माइनस I1S, तो पूरा ब्रैकेट करंट वाला कैंसिल हो गया। तो हम क्या कर रहे हैं इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 4। इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 से डिवाइड कर लिया, इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 से डिवाइड कर लिया, तो I1 कैंसिल हो गए, P बाई क्यू इजिकल्स टू I माइनस I1 कैंसिल हो गए, R बाय S। दिस इज द कंडीशन ऑफ, दिस इज द कंडीशन ऑफ बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि व्हेन, अच्छा इसी इसी को मैं रेशियो को थोड़ा सा चेंज भी कर सकता हूँ। मैं क्या लिख सकता हूँ, P बाय R इज इक्वल्स टू Q बाय S लिखा जा सकता है इसे। कोई चेंज ही नहीं, कोई डिफरेंस ही नहीं है, वही की वही बात है। P बाय Q इक्वल्स R बाय S। P, Q, R, S, these are the resistances of arms of this quadrilateral। P by Q is equals to R by S और P by R is equals to Q by S। सिंपल सी बात है, when the ratio of resistances of adjacent sides are equal, the Wheatstone is bridge is in balanced condition। P by Q, ratio of adjacent side, ratio of resistance of adjacent side, R by S, ratio of resistance of adjacent side, या P by R equals Q by S, दोनों में से कहीं से भी आप कान पकड़ लीजिए। when the resistance of when the ratio of resistance of adjacent sides are equal, the Wheatstone bridge is balanced Wheatstone bridge। रेशियो जब इक्वल हो जाएगा तो बैलेंस्ड हो जाएगा। For Wheatstone bridge to be balanced, the ratio of resistances of adjacent sides must be same। किन्हीं भी एडजेसेंट साइड्स को उठा लीजिए, इन एडजेसेंट साइड्स की रेजिस्टेंसेस के रेशियो सेम होने चाहिए। और अनफॉर्चुनेटली बच्चे जो है अक्सर वही काम करते हैं जो मैं कहता हूँ ऐसा मत करना, यहाँ मिस्टेक हो जाएगी। लेकिन पता नहीं क्यों मुझसे कुछ ज़्यादा ही मोहब्बत है बच्चों को, कहते हैं कि नहीं 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 जैसे आप बताओगे वैसे तो करेंगे ही नहीं, उसका तो उल्टा ही करेंगे। जब एग्जाम में पूछते हैं कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर व्हीट स्टोन ब्रिज टू बी बैलेंस्ड, बैलेंस होने के लिए बताओ क्या कंडीशन है व्हीट। एग्जामिनर ने आकर पूछा बताओ व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है, तो आपने फट से बता दिया। फिर कहेगा अच्छा बताओ कंडीशन, क्या कंडीशन होती, आप कहोगे द रेजिस्टेंस ऑफ, द रेजिस्टेंस ऑफ, हाँ सर बता रहा हूँ, सर बता रहा हूँ, सर रेजिस्टेंस ऑफ, नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, सर रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस, नहीं सर, रेजिस्टेंस ऑफ एडजेसेंट साइड शुड बी सेम। खत्म, सारा व्हीट स्टोन ब्रिज सारा बहा दिया पानी में। ध्यान से देखिए क्या है ये, रेजिस्टेंस, रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ एडजेसेंट साइड्स मस्ट बी सेम। रेजिस्टेंस सेम नहीं होना है, रेजिस्टेंस की रेशियो सेम होनी, रेशियो सेम होना है, रेजिस्टेंस सेम नहीं होना है। मतलब क्या है इसका, देखो ये रेजिस्टेंस 3 है, ये रेजिस्टेंस 6 है, तो रेशियो कितना आ गया 1:2, 3:6 यानी 1:2। तो अब आपका आर और एस का रेजिस्टेंस का रेशियो 1:2 होना चाहिए। अगर ये 10 है तो ये 20 है, अगर ये 100 है तो ये 200 है, अगर ये 50 है तो ये 100 है। रेजिस्टेंस सेम नहीं होने, रेजिस्टेंस की रेशियो सेम होनी है, रेशियो सेम होनी है। हाँ एक कंडीशन ये भी बनती है कि जब सारे के सारे रेजिस्टेंस आपके सेम हो जाए,
तो अपने आप ही रेशियो सेम हो जानी है, ये भी 10 ओम, ये भी 10 ओम, ये भी 10 ओम, ये भी 10 ओम, तो T अपॉन क्यू 1/1, 1:1। R/S 10/10 यानी 1:1। अगर सारे रेजिस्टेंसेस सेम हो गए तो रेशियो तो अपने आप ही इक्वल हो गई। लेकिन रेजिस्टेंसेस का इक्वल होना जरूरी नहीं है, रेजिस्टेंसेस के रेशियो का इक्वल होना जरूरी है। लेकिन आप में से ज्यादातर बच्चे वो पूरी डेफिनेशन में जो टंग ट्विस्टर होता है, कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंची ऊंट की पूंछ, अब कभी इसमें ऊंट गायब कर देते हैं, कभी पूंछ गायब कर देते हैं, कभी ऊंचा गायब कर देते हैं, तो वो सत्यानाश हो जाता है पूरे के पूरे डेफिनेशन का, पूरे के पूरे लॉ का ही सत्यानाश हो जाता है। एनीवे ध्यान रखिए, समझिए, याद मत कीजिए, रटिए मत, समझिए। जब आप समझ लेंगे तो सब कुछ आपके लिए आसान है। अब देखो हम कि यहाँ जब बैलेंस्ड कंडीशन है तो गैल्वेनोमीटर के थ्रू कोई भी करंट का फ्लो नहीं हो रहा। बैलेंस्ड कंडीशन है, गैल्वेनोमीटर का करंट फ्लो नहीं हो रहा, जबकि प्रॉपर कनेक्शन लगे हुए हैं, सब कुछ इंटैक्ट है, फॉर्मली जुड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी गैल्वेनोमीटर में कनेक्शन नहीं हो रहा। आप में से कौन मुझे बता सकता है कि ऐसा कब पॉसिबल है, कब पॉसिबल है ये कि कनेक्शन जुड़े हुए हैं, बैटरी भी लगी हुई है, बाकी सर्किट में करंट चल रहा है, लेकिन गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं चल रहा? ऐसा कब पॉसिबल है? रेज योर हैंड्स। आपने कहा कि इससे गैल्वेनोमीटर का स्विच ऑफ होगा। आप ध्यान से देखिए, मैंने गैल्वेनोमीटर के साथ तो कोई की लगाई ही नहीं। गैल्वेनोमीटर तो सीधे सीधे बी और डी के बीच में जुड़ा हुआ है, लगानी भी नहीं है इसके बीच में कोई की तो यहाँ लगी हुई है, ये की सही है अपनी जगह। क्वेश्चन मेरा ये है कि पॉइंट बी पर गैल्वेनोमीटर का तार बढ़िया तरीके से पक्का बढ़िया जुड़ा हुआ है, पॉइंट डी पर भी गैल्वेनोमीटर का वायर जुड़ा हुआ है, कनेक्शन सब कुछ प्रॉपर है, करंट भी चल रही है, सेल भी है, बढ़िया वाला है, ओरिजिनल कंपनी का क्वालिटी वाला लाए हैं, आईएसआई मार्क, आईएसआई मार्क नहीं, आईएसओ, जो भी होता है, लेकिन फिर भी गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं चल रहा। कब? जब P अपॉन क्यू और R अपॉन एस आपस में एक दूसरे के इक्वल है तो गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं चल रहा। ऐसा क्यों हो रहा है? सब कुछ इंटैक्ट है, सब कुछ अपनी जगह प्रॉपर जुड़ा हुआ है, सर्किट में करंट चल रही है, बाकी चार रेजिस्टेंस में करंट चल रही है, गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं है। ऐसा कब पॉसिबल हो सकता है? सर अगर सर बी और डी सर यस। दोनों पॉइंट पर पोटेंशियल बराबर हो। ओह वेरी नाइस, दुष्यंत ने ये बात बताई है, बहुत ही बढ़िया। जब बी और डी दोनों का पोटेंशियल इक्वल हो, बहुत सिंपल सी बात है, दुष्यंत ने कहा भाई करंट चलने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? करंट चलने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस जरूरी है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिला तो करंट नहीं चलेगी। बहुत ही बढ़िया आंसर दिया, एकदम परफेक्ट आंसर, नीट एंड क्लीन आंसर जिसे बोलते हैं। सिर्फ काम की बात, कोई बकवास नहीं, नो बकवास। क्या था वो ऐड, क्या होता था वो ऐड, क्या बोलते थे उस ऐड को? देखो ध्यान से, आपके घर में आपके घर में जो प्लग पॉइंट लगा होता है, उस प्लग पॉइंट में तीन तीन पॉइंट बने होते हैं। ये तो होता है अर्थ, हालांकि हमारे घरों में ज्यादातर में अर्थ नहीं लगा हुआ। इसमें से एक पॉइंट होता है न्यूट्रल और एक पॉइंट होता है फेस। न्यूट्रल का पोटेंशियल हमेशा जीरो होता है, जीरो पोटेंशियल होता है इसका, और इसका पोटेंशियल जो है वो इसका पोटेंशियल 220 वोल्ट होता है। जब आप एक तार लेते हैं कहाँ से? एक तार आप लेते हैं फेस वायर से, एक तार लेते हैं आप क्या, न्यूट्रल वायर से, और यहाँ आपने कोई अपना अप्लायंस लगा दिया, बल्ब लगा दिया, वो बल्ब जल गया, एलईडी जल गई आपकी, बढ़िया हो गया काम। अगर मैं काम करूं यार 220 वोल्ट और 0 वोल्ट पे इतना बढ़िया जल रहा है, तो मैं तो 220 दे दूं दोनों तरफ। मतलब एक तार मैंने यहाँ से निकाला, दूसरा तार यहाँ से निकाला, और मैंने अपना बल्ब यहाँ लगा दिया, जल बेटा जल, दोनों तरफ तुझे 220 वोल्ट दे रहा हूं मैं, जलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि करंट को फ्लो करने के लिए चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस। फिर मैं बार बार अपनी उसी कहानी पर आ जाता हूँ घूम फिर के, कि यहां से लिक्विड का फ्लो कौन डिसाइड करेगा? लेवल डिफरेंस। अगर लेवल का डिफरेंस है तो लिक्विड का फ्लो होगा, और अगर लेवल का डिफरेंस नहीं है तो लिक्विड का फ्लो होगा ही नहीं, चाहे कितना ही भर लो। दोनों तरफ पूरी पूरी टंकी भर दो पानी की, कितनी बड़ी टंकी, जो वो मोहल्ले के बाहर वो पर किले में लगी हुई ऊपर, जो सारी सारे किले में से दिखाई देती, दोनों तरफ इतनी बड़ी बड़ी टंकी बना लो। अगर लेवल का डिफरेंस नहीं है
मतलब ही नहीं है फ्लो करने का। तो पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए करंट को फ्लो करने के लिए, चार्ज को फ्लो करने के लिए, वाटर को, लिक्विड को फ्लो करने के लिए। लिक्विड ही नहीं चाहिए, लिक्विड कितना अमाउंट है इससे कोई मतलब नहीं, लेवल का डिफरेंस चाहिए। तो अगर गैल्वेनोमीटर में करंट का फ्लो नहीं बन रहा, करंट फ्लो नहीं हो रही गैल्वेनोमीटर में, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन पॉसिबल है कि पोटेंशियल ऑफ बी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल ऑफ डी हो गया हो। और ये तब होता है व्हेन पोटेंशियल फॉल अक्रॉस पी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल फॉल अक्रॉस आर, पोटेंशियल फॉल अक्रॉस सी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल फॉल अक्रॉस क्यू इक्वल्स पोटेंशियल फॉल अक्रॉस एस। अब घूम मत जाना, चक्कर में मत पड़ना है मैं क्या बोल रहा हूँ ये। सपोज मैंने 12 वोल्ट की बैटरी लगाई, 12 वोल्ट में से 4 वोल्ट यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो गए, 8 वोल्ट यहाँ आ गए। V1 इज टू V1 प्लस V2, सिंपल सी बात है। 4 वोल्ट ड्रॉप हो गए P के अक्रॉस, 8 वोल्ट ड्रॉप हो गए Q के अक्रॉस। तो पता ये लगा कि वॉट एवर विद द वैल्यू, हो सकता है इन दोनों की वैल्यू डिफरेंट है, ये 3 है, ये 6 है, ये 10 है और ये 20 है, लेकिन 10 होने पर भी इसके अक्रॉस AD पर के अक्रॉस पोटेंशियल फॉल है 4 वोल्ट और DC के अक्रॉस पोटेंशियल फॉल है 8 वोल्ट। जो पोटेंशियल फॉल इस आर्म पर हो रहा है वही पोटेंशियल फॉल इन वाली आर्म पर भी हो रहा है। जो पोटेंशियल फॉल AB पर है वही पोटेंशियल फॉल AD पर है। तो फिर उस केस में पोटेंशियल ऑफ बी इक्वल्स पोटेंशियल ऑफ डी। ये कब पॉसिबल है? इन बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज, इन बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज वी बी इज इक्वल टू वी डी। मैं वोल्टेज लिख रहा हूँ यहाँ, पोटेंशियल लिख रहा हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लिख रहा हूँ। पोटेंशियल ऑफ बी, पोटेंशियल ऑफ बी इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ डी। जब दोनों सेम पोटेंशियल पर आ गए तो करंट का फ्लो नहीं होगा, चाहे आप गैल्वेनोमीटर छोड़िए, हाथी लगा दो, हाथी लगा दो, चूहा लगा दो, उससे कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि पोटेंशियल ऑफ बी और पोटेंशियल ऑफ बी दोनों दोनों सेम है, करंट का फ्लो होना ही नहीं। हाँ, अगर बाई दी वे पोटेंशियल ऑफ बी ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ डी हो तो गैल्वेनोमीटर में करंट होगी बी से डी की तरफ को, गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन आ जाएगा। लेकिन अगर कुछ कंडीशन बाई दी वे ऐसा बना कि डी का पोटेंशियल ग्रेटर है बी के पोटेंशियल, तो गैल्वेनोमीटर में करंट का फ्लो कहाँ होगा? डी से बी की तरफ होगा। और कब नहीं होगा? जब दोनों तरफ पोटेंशियल आपका सेम हो जाएगा, पोटेंशियल ऑफ बी इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ डी। एक चीज और बहुत इसमें ध्यान से रखनी है कि जब आपका व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है, जब बैलेंस्ड है तब आप अगर बैटरी को निकाल कर लगा दें गैल्वेनोमीटर पर और गैल्वेनोमीटर को निकाल कर लगा दें बैटरी की जगह, यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा दें यहाँ बैटरी लगा दें, तो भी क्या होगा? रेशियो तो बदलेगा नहीं, बैलेंस्ड है, रेशियो सेम का सेम रहेगा, रेशियो सेम रहेगा, तो फिर आपके गैल्वेनोमीटर पर डिफ्लेक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वन ऑफ द डायगोनल पर लगा हुआ है गैल्वेनोमीटर, अदर डायगोनल पर लगा हुआ है आपका बैटरी, दोनों को आप इंटरचेंज कर दीजिए। अगर ये बैलेंस्ड है तो भी इंटरचेंज करने पर गैल्वेनोमीटर में रीडिंग वही जीरो की जीरो ही रहेगी। आप करके देख लीजिए, आप ये कंडीशन है, यहाँ बैटरी लगा दी थी, यहाँ लगा दी थी, फिर से वही P अपॉन क्यू और R अपॉन एस आपके सेम आ जाएंगे सब, सारी कहानी करने के बाद में ही। तो बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज पर अगर आप बैटरी और गैल्वेनोमीटर इंटरचेंज कर दें तो भी इसकी बैलेंस्ड कंडीशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है।